Hello students and welcome to this next video on eclectic reading. So what I was discussing in the last lecture that how reading on diverse genre will help you out to crack reading comprehension. And as I have told you that in a very 30-35 minutes types we'll try to understand what this economics is, what are those jargons is and how it can help you in cracking reading comprehension. So when I start my last video, just to quickly recapitulate what we have done in the last class, we discussed about the agenda, what will be the things which we will be covering in this particular video, and these were the agendas which I was saying that we'll be covering. In the last video, we seen all the economic policies, fiscal policies related to macroeconomics. Then we discussed about microeconomics, and in microeconomics we were talking about some of the examples. We talked about the housing market, local businesses. This is what we have talked. And then in microeconomic concept we talked about marginal utility, elasticity of demand, and we have seen these kind of curves as well, right? So this is what we have covered in the last video. Now today what I'll be doing is we'll be starting with GDP, GNP, MNP, right? So we'll take next 15-20 minutes. In that we'll be covering this, and then in the next video we'll start with beginners and economics reading comprehension. So let's start. So when I talk about gross domestic product, this is the main, I would say, factor in understanding the financial condition of a country. Right? When I talk about GDP, what exactly is gross domestic product? It is the value of goods and services produced inside the boundary of the nation during 1 year. For example, be it the domestic companies, be it foreign companies, any company, whatever they will produce in India. I'm just taking an example of India, not necessarily India, it can be any country. So domestic company or foreign company, whatever products and services what they are basically, producing in India in the boundary of the nation during 1 year, that is something which is called as gross domestic product. ठीक है? ये GDP का definition होता है. And then the second is GNP. And please, when you are going for your final interviews or let's say the VAT exams, right? Please do read newspaper on the same day what exactly the GDP of a country is, or let's say the inflation rate or unemployment rate, because you can expect questions related to that, or probably in your VAT it may help you have a very strong premise for whatever conclusion you are reaching to. So GNP is gross national product. What is GNP? Let's understand. It is the GDP of the country added with the income from abroad, which means that is gross national product. So एक ये मेरा हो गया GDP. अब इसके अंदर क्या होगा? So what exactly is GDP? GNP, इसमें GDP ऐड करेंगे हम लोग. So GNP के अंदर हम लोग GDP ऐड करेंगे, and in addition to that, my domestic companies. For example, if I talk about TCS, Infosys, right? My domestic companies, whatever income I am getting from abroad, will add here, and that's what my gross national product is all about. Because मेरी abroad से जो income मैं कमा रहा हूँ, वो भी यहाँ पर add हो जाएगी. So why I was giving an example of let's say TCS or Infosys for example, because they take overseas clients also, they take overseas projects also, and that is the additional income for them and for India as well. That is gross national product, and this is how I want to explain it here. That's GNP plus GDP plus income from abroad. So this is what GNP is all about. And then is net national product or national income. So if I talk about net product income क्या होगा? Obviously हमें पता है what exactly is income is gross national product. ये मेरी total income हो गई. इसके अंदर depreciation, there is, as the depreciation concept is that over the time the value of the good and let's say services they decrease. Over the time it decreases. For example, when we talk about our assets, like let's say अगर मान लो हम लोग कार की बात कर रहे हैं, या फिर let's say हम लोग किसी भी let's say बाइक की बात कर रहे हैं, it depreciates over time, right? घर की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है सर वो जमीन एप्रिशिएट होती है, बट
हमारे पास हम बात कर रहे हैं जो लेट्स से सोसाइटी बना रहे हैं, इट बेसिकली काइंड ऑफ डेप्रिशिएट्स, राइट? सो जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन, इट्स नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन, इट कम्स अंडर एनएनपी व्हिच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपका जो पूरा डिसाइड होगा वो इस बेस पे होगा, राइट? कि आपका नेशनल इनकम कितना है। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। Now, very important thing which I want to mention here, आपको मैंने पहले भी शायद लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं, राइट? सो इज होम मेकर अ अनएम्प्लॉयड पर्सन? When we talk about unemployment percentage rate, when I was talking about the during COVID pandemic and specifically in the middle stages of that second wave, it touched somewhere around 23. In the second wave, US as a country was hit worstly ever as far as unemployment rate is concerned. They are slowly and steadily picking up, but they are worstly hit from this pandemic. So is homemaker an unemployer? Homemaker is not unemployed. Homemaker is not unemployed because the reason is, as I have mentioned, unemployment rate उस तरीके से कैलकुलेट होती है कि आप जॉब देख रहे हैं, you are looking for the job. If you are not looking for the job, you won't be considered under unemployment. Does beggar contribute to the GDP? Gross domestic product के अंदर क्या beggar जो है वो कंट्रीब्यूट करता है? नो, beggar does not contribute to GDP because he is begging. वो किसी से मांग रहा है जिसकी शायद इनकम पहले जो है जीडीपी में इंक्लूड हो चुकी होगी। So these are the two things which basically I am trying to give you an example कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, मेरे अंदर स्किल्स है, मैं ट्रेनिंग ले चुका हूं, मैं मार्केट के लिए रेडी हूं, मैं मार्केट में जॉब ढूंढ रहा हूं और तब भी नहीं मिल रही है जॉब। सो फॉर एग्जांपल, probably if I have to say, if portals like naukri.com, if portals like let's say all those portals जहां पर हम लोग जॉब पोस्ट करते हैं, monsterjob.com, अगर हम लोग यहाँ नौकरियां ढूंढ रहे हैं, लिंक्डइन फॉर दैट मैटर, अगर यहाँ समवन इज लुकिंग फॉर दैट जॉब, अगर वो जॉब वहां पर ढूंढ रहे हैं, उनको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर डालेंगे। और ढूंढ रहे का मतलब ये नहीं कि एग्जिस्टिंग जॉब है वो प्रमोशन के लिए ढूंढ रहे हैं, दे आर फ्रेशर्स, they are looking for a job, they will be included under unemployment rate, right? Some important terms, थोड़ा और terms के ऊपर जाते हैं। deflation, we are talking about deflation, we are talking about inflation। पहले इन दोनों चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। महंगाई दर, इंडिया की करंट महंगाई दर 6% को छू रही है, जो कि आइडली आरबीआई के हिसाब से 4% के हिसाब से होनी चाहिए, राइट? और दे हैव केप्ट दैट बार दैट शुड नॉट गो बियॉन्ड 4%। So inflation is that महंगाई दर, inflation rate wherein the increase in the prices of goods. It is as basic, मैंने बताया था कि मैं डिटेल के अंदर कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बेसिक्स के अंदर समझाऊंगा, बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं दैट डोंट वरी, अगर आपको बेसिक जार्गन्स भी पता होंगे तो भी शायद आप आरसी को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएंगे। सो इन्फ्लेशन इज प्राइस ऑफ गुड्स, राइट? और इंक्रीज इन प्राइस, increase in price of goods is known as inflation। पहले जो चीज 100 रुपीज में मिल रही थी, अभी वही चीज ऑफ सेम थिंग, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम वैल्यू इज नाउ कॉस्टिंग मी 150 रुपीज। ये एक इन्फ्लेशन रेट है। सो ओवर द इयर्स ये जो बड़ा, इसको हम इन्फ्लेशन रेट बोलेंगे। और इसी तरीके से डिफ्लेशन रेट होता है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स इज डिफ्लेशन। कंट्री के लिए, एक कंट्री के लिए, सो ये दोनों मेजर्स जो है एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, इन पे टैब रखना जरूरी है, विच मींस आप एज अ कंट्री ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए और एज अ कंट्री ना ही ज्यादा डिफ्लेशन होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो गया तो भी कंट्री के लिए खतरनाक है, आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे इकोनॉमिकली, और अगर आप ज्यादा इन्फ्लेट हो तो भी इट इज वेरी बैड बिकॉज you are basically creating that gap over the years। So over the time there should be a maintenance between increase inflation and deflation, so it should be managed properly।
सो मैं आप लोगों के एक बार रेफरेंस के लिए लिख देता हूं यहां पर, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स और ये है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स। द थर्ड इज रिसेशन। many articles they were talking about, many students talk about कि सर इस कोविड टाइम के अंदर रिसेशन आ गया है? नो, देयर इज नो रिसेशन एट दिस टाइम, बिकॉज रिसेशन क्या है, ओवर 2 क्वार्टर्स विच मीन 6 मंथ्स, ओवर 2 क्वार्टर्स अगर आप कंटिन्यूसली जो है आपकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, ओवर 2 क्वार्टर्स विच मीन्स ओवर 6 मंथ्स अगर आपकी जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्शन नीचे जा रही है, तब उस कैटेगरी के अंदर हम रिसेशन बोलते हैं। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो रिसेशन एट ऑल, ठीक है। डिसइंफ्लेशन, नाउ ये जब इन्फ्लेशन रेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं इन्फ्लेशन रेट अगर मान लो 3% है, राइट, और डिसइंफ्लेशन क्या होगा, जब ये इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में चली जाएगी, जब ये इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में चली जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं डिसइंफ्लेशन, वेरी बैड फॉर अ कंट्री। मतलब हमारी महंगाई दर नीचे जा रही है, हमारी महंगाई दर नीचे जा रही है, विच इज वेरी बैड, दैट इज कॉल्ड एज डिसइंफ्लेशन। सो जब आपका इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव के अंदर जाना शुरू कर देता है, तो इस केस के अंदर आरबीआई अपनी पॉलिसीज बनाता है, पैसा बहुत ज्यादा पंप करना पड़ता है मनी के मार्केट के अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए, अदरवाइज हालत बहुत खराब हो जाती है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विसेज यूनिट, इकोनॉमी ओवरऑल, बैंकिंग लोन्स, हाउसिंग लोन्स, एवरी डैम इंडस्ट्री। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपको क्वेश्चन कुछ पूछता है कि रिसेशन से कौन सी कंट्री हिट होगी, इन्फ्लेशन से कौन सी कंट्री इंडस्ट्रीज हिट होंगी, डी-इन्फ्लेशन से कौन सी इंडस्ट्रीज हिट होंगी, डिसइंफ्लेशन से कौन सी इंडस्ट्रीज हिट होंगी, so all damn industry what you can think of will get hit basically from all these measures। और इसीलिए इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। स्टैगफ्लेशन, जब आपका इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट हो गया है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग, इट्स नॉट डिक्रीजिंग, इट इज स्टैग्नेंट, रुक गया है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। लिक्विडिटी, सो लिक्विडिटी क्या है, जो भी एसेट्स आपके पास है या गवर्नमेंट के पास है, व्हाटएवर गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स हैं, अगर उनको बेच के आप हाथ में जो आपके पास पैसा आ जाएगा, इमीडिएट पैसा, दैट इमीडिएट पैसा इज लिक्विडिटी, राइट। सो व्हाटएवर एसेट्स यू हैव, अगर उसको आप बेच के इमीडिएट कैश ले सकते हो, उसको क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको अगर हटा दो, इट इज एज गुड एज ग्रोथ। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, लास्ट ईयर ये जीडीपी था, इस साल ये जीडीपी है, इसको हम लास्ट ईयर से कंपेयर कर लेंगे, जो आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं दैट इज ग्रोथ, और इसी को हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स, प्लीज नोट दिस डाउन। और मैं अगेन बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर समझाया है, प्रोबेबली अगर इसको थोड़ा और डिटेल विद एग्जांपल पढ़े तो यू नीड प्रोबेबली टेक 2.5 hours more to understand with examples, but that's not, this is not an economics class, this is reading comprehension, and that's why we will not spend that much time. Okay, let's continue. So these are some of the other concepts. We are talking about opportunity cost. मैंने इसके बारे में बात किया था, अगर आपको याद हो, जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा था, जब मैं बिजनेस डीलिंग्स की बात कर रहा था, जब मैं एक बिजनेसमैन किस तरीके से अपना कैलकुलेट करेगा चीजों को, मैं जब उसकी बात कर रहा था, देन आई हैव टॉक्ड अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड यू आर, लेट्स से आप कोई और अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, सो वो उस अपॉर्चुनिटी से जो पैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड व्हेन आई गेव यू दैट एग्जांपल, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम, लेट्स से, गिविंग दिस लेक्चर और आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, सो I have missed on some opportunity. Probably that opportunity will be to start my own classes. So I am missing on that opportunity and recording these lectures. So what could I have earned? Right, that is my opportunity cost, that I am taking thing on behalf of something else which I can do. That is something my opportunity cost. अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, अगेन जैसे कि हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट बोल रहे हैं, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका वो एक्चुअल प्रॉफिट है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब ऑन पेपर इनकम, आप सॉरी फॉर दैट,
income minus expenses is basically your accounting profit. और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, इसमें आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करते हो. आई होप इट इज क्लियर व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि इसके अंदर इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर आप जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इन एनी बिजनेस. आप जब भी बिजनेस की बात करेंगे या आप जब भी आगे जाके मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजीज के अंदर बात करेंगे, एक चीज आपसे पूछी जाती है, और आप में से अगर मान लो किसी के पेरेंट्स वगैरह बिजनेस वगैरह के अंदर हैं, वो हमेशा बात करेंगे कि ओवर द टाइम फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती जा रही है. सो वेरिएबल कॉस्ट इज स्टिल ओके, बट फिक्स्ड कॉस्ट शुड नॉट इंक्रीज. व्हाट आर माय फिक्स्ड कॉस्ट? माय रेंटल्स फिक्स्ड कॉस्ट, माय सैलरीज दे आर फिक्स्ड कॉस्ट, माय लेबर कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, राइट. ये सारी मेरी क्या है, ये सारी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है जो मुझे हर महीने देनी ही देनी है. मैं सैलरी से नहीं कर सकता, मैं लेट्स से रेंटल नहीं छोड़ सकता, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट में आती है. और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे. सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक टीचिंग एज अ प्रोफेशन, क्योंकि आई एम इन दैट प्रोफेशन, आई कैन गिव यू दैट एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से आई हैव दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट, और मुझे लेट्स से एक फिक्स्ड कॉस्ट की बात करनी है, आई विल बी हैविंग सम रेंटल, आई एम हैविंग सम 2-3 फैकल्टीज टू whom I have to give salaries, और मुझे पता है इन 2-3 फैकल्टी से मेरा काम हो जाएगा. और लेट्स स्टार्ट, देयर आर सर्टेन लेट्स से ऑफिस एक्सपेंसेस, देयर आर सर्टेन normal expenses which I need to take care of, for example the bills and all those things. That's my fixed cost जो हर महीने आएगा. Now variable cost क्या होगा? मेरे फैकल्टी के number of hours. The moment number of batches increases, numbers of hours increase, number of hours increase, my cost increases. So variable cost increases as your production increases. और यहां पर एक concept आता है economies of scale. यहां पर एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड इसीलिए बोला जाता है द प्रोडक्शंस की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेट द मोर यू रीच इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट. आप जितना ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल में रीच करेंगे, आप जितना ज्यादा सिमिलर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ लेट्स से आई एम मेकिंग अ स्विफ्ट डिजायर, आई एम मेकिंग अ नॉर्मल स्विफ्ट, एंड लेट्स से आई एम मेकिंग ब्रीजा. Right, so all Brezza now have been taken by Toyota, but I am just talking example of Maruti. So Maruti, let's say in assembly line is manufacturing Swift Desire, normal Swift, and Brezza. Now the engines, let's say for example, all these have a 1100cc engine, all these have a similar steering, all these have a similar dashboard. So that's where I try to reach, you know, the economies of scale. My variable cost doesn't increase much because the production or the assembly line more or less for these three things are same, right? So यहाँ पर जो companies हैं अपना cost वॉस्ट बचाना शुरू करती है. IPO and FPO सब जानते हैं हम लोग. IPO की standing here I am talking about. Paytm has got the approval from SEBI to launch its IPO. Zomato have got the approval from SEBI to launch its IPO, and close to around in the next 2 months, newspaper is saying that close to around 40-45 odd IPOs are expected in the next 4 months, not 2 months, 4 months down the line. So IPO is initial public offer. हाँ सर, जिससे लोग पैसा कमाते हैं हमने ये सुना नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. IPO is initial public offer. पहली बार जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, वो फाइल करती है आईपीओ के लिए, विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. एंड एफपीओ क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. जब कंपनी एक बार पैसा ले चुकी है मार्केट से और कंपनी को और पैसे की जरूरत है एक्सपांशन के लिए, सो कंपनी और शेयर्स मार्केट में अपने आप को और डाइल्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, एंड दैट इज कॉल्ड एज एफपीओ, विच इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. So these are the two concepts of IPO and FPO. Terminologies related to startups and investment. Again for you guys, अभी क्योंकि startup का जमाना है, हम Paytm की बात करते हैं. We talk about Flipkart, Byju's. Sitting here, we talk about Toppers. We talk about Doubtnut. We talk about many startups. Now let's see what are these things all about. Angel investor, right? वो परी जो investment करती है, हाँ. एंजल इन्वेस्टर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल दीज आर द इन्वेस्टर्स जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे इन्वेस्ट करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ लेट्स से आई ओन ई कोचिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ लेट्स से आई ओन ई कोचिंग, राइट. सो ई कोचिंग के अंदर लेट्स से इफ आई एम नीड ऑफ लेट्स से फंड्स, ठीक है,
So there will be some investors out of their personal capacity, they will invest here for a certain interest, for a certain stake, right? इसके कुछ एग्जांपल देते हैं. Ratan Tata have invested in a personal capacity in many startups. For that matter, Vijay Shekhar Sharma have invested, the Paytm founder or the CEO have invested in certain startup. Binny Bansal, Sachin Bansal of Flipkart, they have also invested in certain startups, right? So Bill Gates for that matter, Elon Musk for that matter, they are angel investors for many of the companies. That is something जब वो funding कर रहे हैं किसी कंपनी को out of their personal capacity. Then called as venture capitalist, जहां पर ये लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. They invest in their personal capacity for certain stake. These are legal companies. ये legal companies हैं and that's their business module. ये इनका business module है. They invest in startups where they think the growth is there and based on that they invest और invest करने के ऊपर ही अपना stake लेते हैं, right? There are many companies like this जो basically venture capitalist के लिए काम करते हैं. SoftBank for that matter, ये सारे venture capitalist होंगे, right? Sequoia Capital for that matter, they are venture capitalist firm. Bootstrapping. Now what is this bootstrapping? क्या होता है? जब आप अपनी कैपेसिटी में, मतलब अगर मान लो Ekoching मेरा स्टार्टअप है, मैंने जो भी लेट्स से इन्वेस्टमेंट किया है, whatever investment I have done is from my own saving. जो ओनर है, ओनर की सेविंग से ही पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसको बोला जाता है बूटस्ट्रैपिंग. नेक्स्ट इज सीड फंडिंग. सीड फंडिंग बेसिकली क्या होता है? जब आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए your friends, your family members, your relatives, when they start investing money, that is called as seed funding. It can be your family member, it can be your friend, it can be your relative. That is where seed funding will come into picture. And at last is unicorn, right? और unicorn जो है, unicorn वो companies हैं जिनका valuation जो है $1 billion है. $1 billion जिनका वैल्यूएशन हो जाता है स्टार्टअप्स का, उसको हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं. इंडिया के अंदर कुछ यूनिकॉर्न्स की हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट पेटीएम, वी आर एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बायजूस. ये सारी क्या है? ये सारे यूनिकॉर्न हैं जिनको जो है $1 billion से ज्यादा जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है. सो दिस इज सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज and terms related to investment and startups. Angel investors, venture capitalists, bootstrapping, seed funding and unicorns. These are the things which you need to know, for let's say cracking RC. क्योंकि अगर मान लो bootstrapping के ऊपर कुछ RC आ जाता है, मुझे पता ही नहीं है. अगर seed funding पे कुछ RC आ जाता है, मुझे पता ही नहीं है. Probably they will relate or they can relate specifically these things with let's say sociology. How we make decisions, right? So that's why you should know all these things, right? So this is about terminologies, about all those things. Now let's talk about stock markets. No, ऐसा मत बोलना सर, हमें सब कुछ पता है. मैं इतनी डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, आपको तो वैसे सब पता होगा क्योंकि you all must have seen that series, right? What was the series name? That हर्षद मेहता वाला, right? Scam series अभी देखा होगा सबने, right? Okay. Sensex, and we are talking about Nifty, and then we are talking about blue chip companies. These are the three things we are talking about. If I talk about Sensex basically a stock exchange sensitive index for Bombay Stock Exchange. ये basically Sensex जो है ये stock index है which is basically for BSE Bombay Stock Exchange, right? Sensex considering of 13 sectors, इसमें 13 अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हैं एंड उसके अंदर टोटल 30 कंपनीज. सो ये 30 कंपनीज 13 सेक्टर की ये डिफाइन करती हैं आपका सेंसेक्स. उसके बाद आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए बोला जाता है दैट निफ्टी बेसिकली इज बिगर देन सेंसेक्स, more reliable than Sensex.
बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, दूसरा इट कंप्राइजेज ऑफ 24 सेक्टर्स, कंपनीज इन 24 सेक्टर्स, जबकि ये 13 सेक्टर के अंदर बता रहा है। और यहां पर हम लोग बात करते हैं 50 कंपनीज की, यहां पर हम लोग बात करते हैं 50 कंपनीज की, और यहां हम लोग बात कर रहे हैं 30 कंपनीज की। लास्ट में हम बात कर रहे हैं व्हाट आर दोज ब्लू चिप कंपनीज। ये ब्लू चिप कंपनीज वो हैं जो कि एकदम आपके कम के बार बोलते हैं ना सर ये कंपनीज के स्टॉक मिल जाएं, या ये कंपनी के शेयर मार्केट में हमने अगर शेयर डाल रखे हो तो ये हमारा वैल्यूएशन क्या 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 कर दे। दोज आर कॉल्ड एज ब्लू चिप कंपनीज, मतलब जिनके ऊपर बहुत कुछ रिलाय करता है। अगर ये हिलते हैं तो सेंसेक्स हिलता है। इन्फोसिस, एमआरएफ, नेस्ले, दीज आर सम ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड पेनी स्टॉक्स, उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है। पेनी स्टॉक ऑल दो स्मॉल कंपनीज जो कि पैसे वैल्यूएशन के लिए अपने आईपीओ वगैरह निकालते रहते हैं। किसी का 12 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए का स्टॉक है, 13 रुपए का स्टॉक है, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम मेनी ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर्स काम करते हैं। दोज आर बेसिकली कॉल्ड एज पेनी। पेनी का मतलब छुटपुट स्टॉक्स आर नोन एज पेनी स्टॉक्स। मैं उसी ही लैंग्वेज में बता रहा हूं जिस लैंग्वेज में एक नॉर्मल आरसी करने वाले बंदे को पता होना चाहिए। हाँ, एज एन इंडिविजुअल आपको इन सबका नॉलेज होना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ दैट्स नॉट माय थिंग इज ऑल अबाउट। म्यूचुअल फंड्स सही है, हमें सबको पता है म्यूचुअल फंड्स कंपनीज क्या करती हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारा पैसा लेके अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर से आगे इन्वेस्ट कराती है, राइट। सो विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। In the next video के अंदर we'll be talking about economics and business passages in detail। और मैं बता रहा हूं मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुना है, नोट्स बनाए हैं और आपने और रिसर्च की है इस वीडियो के बाद, और मैं चाहता हूं जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसके ऊपर एटलीस्ट 3-4 घंटे लगा के रिसर्च कीजिए, और फिर हम जब वीडियो सुनेंगे, जब हम आरसी सॉल्व करेंगे, आपको भी इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी, राइट। थैंक यू एंड कीप लिसनिंग टू इकोचिंग।